Welcome to the SIMS show where talent meets passion, knowledge meets creativity, and dreams take the spotlight. Every doctor wants a student with a dream, a stethoscope round the neck, a white coat, and countless sleepless nights. Today, we are bringing you one such story from the lecture hall to the hospital ward. Let's dive in and kindly welcome our guest for today's episode, Miss or officially Dr. Dhwani Jain. Hello, I am Dhwani. Uh, you may also now call me Dr. Dhwani, but I am here on the first episode of the SIMS show, and I'm really excited to be here tonight. ध्वनि ओके लेट्स ब्रेक अ मिथ एमबीबीएस पास करने के बाद सबसे पहली फीलिंग क्या थी आपकी इट्स फाइनली आप डॉक्टर बन गई हैं या असली स्ट्रगल अब शुरू हुआ है The minute the result came out, I actually cried because for the past 8 years, I just had that one single dream that I want to become a doctor. I was in 11th when I moved to Delhi from Dehradun to pursue NEET coaching, and then after that, a drop, COVID, and 4.5 years of long college, and so much hard work that reality really hit. I talked to my parents and I just broke down crying that okay, this is actually true now. Like 8 years was one third of my entire life, and I have put those many years just for Sure. this one thing. So it was surreal. इट्स रियली सरियल जैसे आपने भी एक ब्रेक लिया होगा आई थिंक फ्रॉम नाइन्थ ऑनवर्ड्स और टेंथ ऑनवर्ड्स आपने अपनी No, जो no. कोचिंग कब से I स्टार्ट किया started preparing from 11th only. ओके I did not prepare in 9th or 10th. 10th only ओके normal boards and schooling. 11th onwards, I started preparing for NEET, not before ओके that. जैसे बहुत सारे पेरेंट्स ना नाउ डेज सेवरल ऑनलाइन क्लासेस आर देयर तो बहुत सारे पेरेंट्स क्या कर रहे हैं कि वो सिक्स्थ ऑनवर्ड्स और फिफ्थ ऑनवर्ड्स इवनली तो वो इवेंचुअली फिफ्थ ऑनवर्ड्स भी क्या कर रहे हैं कि अपने बच्चों को इन क्लासेस में डाल दे रहे हैं कि हम आगे के लिए प्रिपेयर करा रहे हैं फॉर डॉक्टर्स फॉर इंजीनियर्स एंड अदर कोर्सेज ऑल्सो तो आपको क्या लगता है कि ये सही है इतना स्ट्रेस अभी देना सही है या 11th 12th में जो स्टूडेंट है या जो बच्चा है वो कैपेबल होता है इतना स्ट्रेस लेने के लिए I mean, starting from 5th, 6th, 7th is just absurd. आप बस बच्चे होते हो, इतने साल के बच्चे को पता भी नहीं होता है कि हमको करना क्या है लाइफ में। इतने साल के बच्चों को पता भी नहीं होता है कि एमबीबीएस कितने साल की होती है, इंजीनियरिंग कितने साल की होती है। एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम दे शुड जस्ट फोकस ऑन being a student, focusing on their basics, having a good social life, going out with friends, family, getting into hobbies, because eventually you will not find enough time for it. And like I started preparing from 11th, and at that point of time when I started my coaching, I went to Delhi and I took 3 registers with me कि हाँ, एक फिजिक्स का, एक केमिस्ट्री का, एक बायो का। ठीक है, इतना ही तो होता है। And I ended up making some 20-25 registers for it, and the system is really messed up because 11th में भी आपने 10th पास किया होता है, अच्छे नंबर आ जाते हैं, ठीक है, मम्मी पापा बोलते हैं कि नहीं तुम तो बहुत स्मार्ट हो, तुम तो मेडिकल करोगे, इंजीनियरिंग करोगे, बट लाइफ इज़ बियॉन्ड दैट। 10th तक चीज़ें ईजी होती हैं, सब कर लेते हैं, बट the pressure that you put on a 16-17-year-old child to get into this messed up rat race is not justified, and no one is mature enough at that age to actually really understand ki why are we doing this, do we actually need to do this. Some children are just absurdly pushed into it कि नहीं यही करना है, and that is wrong in my opinion. ओके एक्चुअली जो अभी का जो सिनेरियो चल रहा है फिर हाँ आपने जी। भी सुना है कि बहुत सारे बच्चे जो हैं नीट पीछे की तैयारी करेंगे अदर थिंग्स की तैयारी करें एंड वो ड्रीम्स तक नहीं पहुंच पा रहे हैं या हाँ वी जी। मीट अप नहीं कर पा रहे हैं एंड देन हाँ दे जी। कमिट सुसाइड हाँ जी। तो व्हाट्स योर ओपिनियन ऑन दैट That is being very nearsighted. Life does not end. Life is bigger than that. If आपका एम बी बी एस में नहीं हुआ कोई बात नहीं, एम बी बी एस में होके भी आप दुखी ही रहोगे।
5 साल शायद खुश रहोगे, उसके बाद फिर से दुखी हो जाओगे। एमबीबीएस में नहीं हुआ, 5 साल शायद दुखी रहोगे, उसके बाद डेफिनेटली खुश रहोगे। बिकॉज आई एम डन विद माई एमबीबीएस एंड नाउ आई हैव टू गिव नीट अगैन। 5 साल पहले मैं जिधर थी कि ओ मैं एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी कर रही हूँ, आज मैं फिर से एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी कर रही हूँ। आई नो पीपल हु आर 30-31, वो उनके बच्चे हैं, वो लाइब्रेरी में बैठे हैं क्योंकि उनको सुपर स्पेशलिटी एग्ज़ाम की तैयारी करनी है। सो इट डज़ नॉट एंड, देयर इज़ नो एंड। इवन इफ़ यू become a consultant, you get a salary of what, 2 lakhs per month. Their own contemporaries, their friends, their own age, they have been earning that amount for the past what 5 years or something, जो वो इस एज में कमा रहे हैं। तो इट इज़ नॉट एज फाइनेंशियली बेनिफिशियल एज इट यूज टू बी। पहले द डॉक्टर्स वी सी अराउंड, पहले सीट्स बहुत कम थी, बहुत कम लोग डॉक्टर्स बनते थे, बहुत कम डॉक्टर्स होते थे। नाउ यू सी डॉक्टर ही डॉक्टर है। ओके, नाउ ध्वनि, जैसे आपने बताया कि अभी जो है वो सीट्स ज़्यादा बढ़ चुकी हैं एंड ऑफ कोर्स डॉक्टर्स काफ़ी अभी आ रहे हैं। तो इंडिया की हेल्थ केयर सिस्टम में जो सैलरी है वो, क्योंकि देखो सबका जो रहता है वो बेसिक फंडा जो है कि मुझे ये एक चीज़ इसलिए करना है, आई हैव टू मेक मनी। तो अपार्ट फ्रॉम रिस्पेक्ट एंड अदर फैक्टर्स, जो मनी है या जो सैलरी है वो यहाँ पे अभी आपको लगता है कि डॉक्टर्स पेड वेल? It depends on the hospital you are, your specialty. But what my point is, in the coming future, there's gonna be plateauing because there will be a lot of people available, but the jobs will not just be enough, and there will be a dearth of good doctors. And jitni MBBS की सीट्स बढ़ रही हैं, प्राइवेट में सीट्स बढ़ रही हैं, दे आर फोकसिंग ऑन द क्वांटिटी एंड नॉट द क्वालिटी। एंड अल्टीमेटली इतने डॉक्टर्स बना के the healthcare is going to suffer because people do not know how to do things. So the public is going to suffer because they'll be at the hands of improperly trained doctors. ओके, अदर देन डॉक्टर्स, जैसे डॉक्टर्स हैं, हेल्थ केयर में और भी कई सारे प्रोफेशंस हैं, तो क्या आप सजेस्ट करेंगे बच्चों को कि जिनका इन केस अगर नीट पीजी नहीं हो पाता है, नीट नहीं हो पाता है, तो अदर देन दैट वो कुछ और कोर्सेज हेल्थ केयर के जो हैं वो ऑप्ट कर सकते हैं? If you do not get into MBBS, there are a lot of allied courses you can get into, like BPT, nursing. You can get into OT technician course, BMRIT, where you will work in the hospital, you will work with the patients, but just not as a doctor, but you will be an integral part of the healthcare system. ओके, मतलब आपके कहने का मतलब ये है कि इट्स नॉट ओनली अबाउट डॉक्टर्स, इट्स अ टीम वर्क एंड Yes. टीम कुछ भी हो सकती है। हाँ जी, तो हाँ उसमें जी, टीम मेंबर्स हम ऐड ऑन कर सकते हैं जितने हाँ भी होते हैं, जी। तो दैट मेक्स अ सेंस इन पर्टिकुलरली मेडिकल फील्ड और हेल्थ केयर फील्ड। Yes, because everyone cannot spend so much for a private college Sure. degree, and मतलब spending 25 lakhs a year, ultimately 1 crore, is not worth it because even when you get into MBBS, it is extremely difficult. इट्स फाइन। ओके ध्वनि, कीप इट लाइटर, बहुत ज़्यादा थोड़ा सेंसिटिव टॉक से हो गई। इफ नॉट डॉक्टर, व्हाट एल्स? Personally, for me, I really did not think much about anything else. I would have maybe become a clinical psychologist, ओके, probably, because psychology really interests me, or something really different. I would have become a fashion stylist, maybe. आपने बताया कि अभी अब जो पीजी के लिए भी आप प्रिपेयर करेंगे, तो अगेन वो स्ट्रेस दोबारा से आता है जो आपने 12th के बाद फेस किया है या नीट प्रिपरेशन पे फेस किया है, या थोड़ा सा लाइटर है या लाइटर साइड में है? So the competition is tougher now technically because अब जो 1.5 लाख लोग पेपर दे रहे हैं वो डॉक्टर्स हैं। पहले 20 लाख बच्चे थे, वो डॉक्टर्स नहीं थे, पर अब सब डॉक्टर बन गए हैं। एंड 11th-12th में क्या होता है कि पेरेंट्स का बहुत प्रेशर होता है, मम्मी पापा सर पे खड़े होते हैं कि नहीं तुमको पढ़ना है, तुमको पढ़ना है। बाय द टाइम यू गेट इनटू योर इंटर्नशिप, योर पेरेंट्स ईज डाउन थोड़ा कि ठीक है, बच्चे ने MBBS में अच्छा किया है, ऐसा किया है, सो दे स्टार्ट ट्रस्टिंग यू। सो देयर इज़ नो कॉन्स्टेंट बिकरिंग कि नहीं पढ़ना है, पढ़ना है, पढ़ना है। यू हैव टू बी मोटिवेटेड ऑन योर ओन, यू हैव टू हैव दैट मच
discipline and motivation that no, I have to sit down and study, because no one is asking you to study. You have to have it in yourself कि नहीं मुझे ये करना है. ध्वनि, एक पर्सनल क्वेश्चन कि आपने कब रियलाइज किया कि बीइंग अ डॉक्टर इज जस्ट नॉट अ प्रोफेशन बट एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है डॉक्टर बनना? I think I've just started my internship, so being in the hospital for longer hours. एज अ मेडिकल स्टूडेंट ऐसा होता है कि ठीक है आपका इतना आवर्स है, आपकी क्लास हुई, आप निकल गए. बट इन इंटर्नशिप इफ़ देयर इज़ एन इमरजेंसी यू हैव टू बी देयर. यू हैव टू रियलाइज़ कि अगर आपने फॉर्म नहीं भेजा बिकॉज ऑफ माई ओन टार्डनेस, it will affect the patient's treatment and it will ultimately lead to a slower response on the part of the healthcare team.